Now we'll see about electroplating with nickel. This is the example. Now we'll see these two. There are two examples. One is electroplating with nickel and other is electroplating with silver. So we are focusing with the first example. ठीक है, डायग्राम आपका बिल्कुल सेम है जैसे पहले, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें. नाउ लेट्स कम टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग में निकल. जो मेटल है ये आपका कंटेनर इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वेसल है. इसमें एनोड रखा हुआ है. ठीक है, एनोड जो है आपको मालूम है इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से है. ये हमने रूल पहले ही पढ़ा था कि व्हेन वी आर गोइंग फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट एनोड शुड बी यूज्ड ऑफ द मेटल दैट इज़ टू बी यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना. एंड कैथोड शुड बी मेड द आर्टिकल टू बी प्लेटेड. ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपकी बुक में यहाँ सीजर बना रखा है, मैंने स्पून बनाया रखा है. डजेंट मैटर व्हाट द ऑब्जेक्ट इज़ बीन देयर, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो नथिंग इज़ आउट ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द आर्टिकल. बोर्ड कैन गिव यू एनी article, it's all depend on their choice. So it's been connected to the ammeter, and over here the electrolyte has been there that is made up of nickel sulfate solution. I have already mentioned you in the electroplating concept that you have to keep three things in your mind. First thing is about the cathode, then second is anode, third is your electrolyte. Means the article whatever it's to be plated should act as a cathode. Anode should be used for the metal part that is to be plated on the article, and the electrolyte should be also matching with the anode one. So this anode and electrolyte should have the same common metals, iron should be there. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो भी निकल है commonly यहाँ पर भी निकल एनोड का होगा, क्योंकि we know that NO decreases or diminish and it is being replaced periodically as your experiments goes on. So this is the case. So nickel sulfate का आपने aqueous solution यहाँ लेना है which acts as an electrolyte over here. I have made over here. Now the nature of the electrodes. Now these are active electrodes, no issues about it. This is already clear about it ke what has been there. The one more thing you have to analyze, whatever article you are using, that I have already mentioned you. Article is it's depend on the board's choice, it's not your choice. And whenever you are using, one thing you should keep it in mind, it should be clean. It should not like that dust उसमें चिपका हुआ है या कुछ और चीज़ लगी हुई है, ऑयल लगा है, ग्रीस लगा है, तब इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रॉपर नहीं होगी. तो आर्टिकल वॉट एवर you are using, it should be clean, right? And it should be act as a cathode and एनोड इज़ द ब्लॉक ऑफ निकल. ठीक है, और ब्लॉक जो लोगे आप थोड़ा प्लेट भी ले सकते हो यहाँ पर या कुछ भी ले सकते हो, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड रहेगी ये, इस चीज़ को ध्यान देना. ठीक है, अब आपका जो रिएक्शन चलेगा इलेक्ट्रोड रिएक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर अबाउट निकल सल्फेट. ठीक है, इसमें निकल सल्फेट जो है सॉलिड है जो कि वाटर में डिज़ोल्व हुआ हुआ है, तो निकल सल्फेट भी अपने रिस्पेक्टिव आयंस में इट विल ब्रेक डाउन. नाउ दिस थिंग इज़ अ हाई टाइम दैट यू शुड नो हाउ टू ब्रेक, यू शुड नो द बैलेंसेस. इट्स इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव फॉरगॉटन, गो टू क्लास 9th syllabus, language of chemistry. In that you can see it, and even I have shared the videos of language of chemistry in my channel, so you can go through that part also. If you are confusing with the valences or the metals parts, so you can go through that, right? It is very helpful so that your basic concepts are clear. So water is also it give you its respective ions. So these are the ions. Now reactions, you know, after dissociation of the aqueous solution of silver, nickel sulfate, it will give you these respective ions. ठीक है, दो पॉजिटिव आयंस मिले हुए हैं, दो नेगेटिव आयंस मिले. अब आपको मूवमेंट्स तो मालूम है कि अब लेट्स गो रिएक्शन एट, आई एम नॉट राइटिंग रिएक्शन एट कैथोड. what is the reaction that takes place? First of all you have to analyze that which will discharge at cathode. माइग्रेशन तो देखो, कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज, इन दोनों का माइग्रेशन होगा. ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कि माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों होगा. लेकिन जो डिस्चार्ज होगा वो किसका होगा? आपका निकल का होगा, है ना. ये तो पता है ना, क्योंकि लोअर आएगा ये, तो निकल का डिस्चार्ज होगा आपका. तो निकल क्या है, यहाँ से आपने उठाया, जितना मैंने आपको बताया ना, रूल रट लीजिए. जितना पॉजिटिव लगा हुआ है यहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पॉजिटिव के लगा दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है किसी भी मेटल पे उस पर उतने इलेक्ट्रॉन्स लेस हैं, इसीलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप करें और इट विल गिव यू अ निकल. मेटल विल बी देयर और निकल विल बी डिपॉजिटेड. ठीक है, तो आपने कैथोड पे क्या लगाया था? अपना आर्टिकल लगाया हुआ था. तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे निकल जो है इस पर डिपॉजिट होने लगेगा. इस बात को ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो निकल विल बी डिपॉजिट ऑन द आर्टिकल दैट इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. अब रिएक्शन एट एनोड,
अच्छा, ये छोटी छोटी बातें तो आपको याद होनी चाहिए। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या कौन सा रिएक्शन चल रहा है आपका, रिडक्शन रिएक्शन। आई विल नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब यहाँ एनोड में आई, एनोड में मैंने बताया था ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये अपने में से निकल को निकालेगी, है ना। जैसे ये हमारा कंटेनर है, इसमें क्या है, हम एक लेके चल रहे हैं, ये एनोड की तरह काम कर रहा है। तो इसने क्या करा, एनोड ने अपने में से मेटल्स को छोड़ना शुरू करा। तो जब तक वो एनोड के अंदर हैं तब तो मेटल हैं, लेकिन जैसे ही वो सोल्यूशन में आएंगे दे विल चेंज टू आयंस। तो कैसे होगा, निकल अगर आयंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करेगा तो ये निकल का आयन बना लेगा। ये सब कहाँ जाएंगे, सोल्यूशन में जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रोड में है जब, तो वो क्या है, निकल एटम है, लेकिन जैसे ही वो आयन में गया, सोल्यूशन में गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल आयन में। ये चीज़ें बात याद रखना। ये कब का केस है, एनोड में। और कैथोड में क्या था, कैथोड में जब तक सोल्यूशन में है तो वो क्या है, उल्टा है, मतलब आयन्स है। और जब वो कैथोड पे गया तो वो इसमें किस में कन्वर्ट है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट मैनर है कि यहाँ से सोल्यूशन से कैथोड की तरफ आयन्स क्या है, माइग्रेट कर रहे हैं आपके। तो ये आपको ध्यान देना है, दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो है धीरे धीरे क्या होगा, जो एनोड होगा वो उसका साइज़ डिमिनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप रिप्लेस कर सकते हैं उसे, जैसे ही आपको लगे एनोड ख़त्म हो रहा है आपका, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेट गो थ्रू दैट ऑल्सो। Now let's come to the electroplating with the silver. I have made the diagram. This is the electrolytic cell, and in which I have put the anode, which is a block of silver. ठीक है। कैथोड जो है आर्टिकल टू बी प्लेटेड। आई मेड अ स्पून, यू कैन यूज़ एनी अदर आर्टिकल ऑल्सो। इलेक्ट्रोलाइट इज़ सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, इट्स अ न्यू वर्ड टू यू, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में आता है, ठीक है। तो इसका एक्वा सोल्यूशन आपको यूज़ करना है, आप एक्वस वर्ड भी लिख लीजिए। ये इट्स एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ध्यान देना है कि एनोड इज़ कनेक्टेड टू द की, देन दिस इज़ द बैटरी पार्ट। बैटरी से कनेक्टिविटी है एनोड की, और एनोड जो है आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा। आर्टिकल टू बी प्लेटेड एक्ट्स एज अ कैथोड, इट्स नेगेटिव, इट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एमोमीटर है जो रीडिंग आपको देता है, ठीक है। एमोमीटर अगर कंफ्यूज है तो घर में आपके फ्रिज वगैरह में स्टेबलाइजर्स होते हैं, आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आप जो जिसमें आपको नीडल की रीडिंग्स आती है वो देख सकते हैं, नहीं तो फिजिक्स लैब में होगा, यू कैन सी द एमोमीटर देयर, राइट। सो दिस इज़ देयर। सो व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन वी हैव टू फोकस ऑन इट। जो भी आर्टिकल हमें प्लेट कराना है उसको हम कैथोड बनाते हैं। एनोड हमें उसी जिस भी मेटल से प्लेटिंग करानी है हमें वो एनोड यूज़ करना है, जैसे हमने सिल्वर का इस्तेमाल करा गया, आप यहाँ निकल भी यूज़ कर सकते थे। इलेक्ट्रोलाइट में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द मेटल कैटाइन शुड बी देयर इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो सोडियम आर्जेंटो मीन्स सिल्वर है, ठीक है। तो सोडियम आर्जेंटो साइनाइड आपने यूज़ करा रखा है। अगर इसका फॉर्मूला देखना मांगे तो वो भी लिख देते हैं, सोडियम आर्जेंटो सिल्वर साइनाइड, CN होल ट्वाइस। सो दिस इज़ द सोडियम आर्जेंटो साइनाइड जो हमने यूज़ करा रखा है, ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट। अब देख रहे हैं ना आप, जो आपका एनोड में सिल्वर है, सेम सिल्वर इज़ प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, सेम प्रोसेस चलेगी। सबसे पहले हम अपना नेचर देख लें कि हमें क्या करना है। कैथोड में हमने जो भी आर्टिकल अपना यूज़ करा रखा है सबसे पहले उसे क्लीन करिएगा, मैंने पहले ही बताया रखा है, नो डस्ट, नो ग्रीस, नो ऑयल शुड बी देयर इन द आर्टिकल, ऑन द आर्टिकल, सॉरी। एनोड में यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि एनोड जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे आपने यूज़ करा रखा है, तो आपको मालूम है कैसा रिएक्शन चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे जो हमें एक वर्ड आया है सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, इस पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि सोडियम आर्जेंटो साइनाइड बना कैसे है। तो सिल्वर साइनाइड जो है वो रिएक्शन करता है सोडियम साइनाइड से, ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तब आपको ये आपको मिल जाता है, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड आपको मिल जाएगा जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि देखो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होंगी तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके पास। इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपने ध्यान दी, इसी को लीजिए आपका सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, ये जब आपका डिसोसिएशन पे जाएगा तो आपको रिस्पेक्टिव देखो इसमें 1 2 3 आयन्स हैं,
तो पहले आप लिख लीजिए, चार्ज बाद में लगाइएगा, ठीक है। अब आपको सबकी बैलेंसी, सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, इस पर कितना होता है, +1 होता है, यहाँ पे क्या है, -1 होता है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपके इतने रिस्पेक्टिव आयंस मिल गए। अब ये घुला तो पानी में ही है, क्योंकि एक्वस कंडीशन है, मैंने AQ लिखा हुआ है, तो ये भी आपको रिस्पेक्टिव आयंस देगा, H+ आयंस एंड OH। अब तुम देख सकते हो कितने सारे पॉजिटिव आयंस हैं और कितने सारे नेगेटिव आयन हैं, 1 2 3। लेकिन सबसे छोटा लोअर पोजीशन में पॉजिटिव में कौन है, सिल्वर, ठीक है। Cn और OH में ये भी OH-, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देना है कि दोनों माइग्रेट करेंगे, लेकिन है ना, अब यहाँ पे कुछ होना नहीं है, वो बात की बात है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट ऑफ ऑल टू द पार्ट ऑफ कैथोड रिएक्शन एट कैथोड का देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कैथोड का, क्योंकि कैथोड में आपका आर्टिकल प्लेटेड है। तो आपने क्या करा है, सबसे पहले आपने कैथोड पे जो आपका आर्टिकल था स्पून लगा हुआ था, तो स्पून पे कौन जाएगा, सिल्वर जाएगा। सिल्वर का माइग्रेशन होगा ना, सिल्वर का सोल्यूशन है, तो Ag+ उस स्पून के पास, जैसे चलो कंटेनर बना ले तो याद रहेगा। हमें एक बना रही हूँ लेकिन आपको दोनों बनाना है, तो आपको पता रहेगा क्या जाएगा। सिल्वर Ag आयंस जो है सोल्यूशन में घूम रहे, और हम देख भी चुके हैं छोटे हैं, तो ये जाएंगे सिल्वर के इसके स्पून के पास। मैंने पहले ही बताया, जब तक वो सोल्यूशन में है तो वो Ag+ है, लेकिन जैसे स्पून पे जाएंगे तो Ag आ जाएगा। अभी Ag कैसे बना, इसमें देखना, जितना पॉजिटिव है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स आप पॉजिटिव के लगा दीजिए, तो Ag आपको, तो सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड ऑन द स्पून, ठीक है। तो सिल्वर का डिपोजिशन हो जाएगा, तो सिल्वर विल बी डिपॉजिट ऑन द आर्टिकल दैट वाज टू बी प्लेटेड, ठीक है। फिर मैं बता रही हूँ, इधर इस जगह में कैथोड की तरफ Na भी जाएगा, Ag+ भी माइग्रेट करेगा और H+ भी माइग्रेट करेगा, तीनों जाएंगे, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है और तुम्हारा कैथोड जो है वो नेगेटिव है, तो ऑल द 3 विल गो टुवर्ड्स कैथोड, बट डिस्चार्ज इसी का होना है, सिल्वर का ही होना है। क्यों, क्योंकि इन तीनों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में Ag जो है वो लोअर पोजीशन में आ रही है, तो इसीलिए वो कैथोड पे जाके अटैच्ड होगा, ठीक है। और इस तरह से जितना मैंने बताया ना, जितना पॉजिटिव उतने प्लस इलेक्ट्रॉन लगा दी, तो सिल्वर आपको मिल जाएगा। नाउ रिएक्शन पता है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। नाउ लेट्स गो टू द रिएक्शन एट एनोड ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू द दिस थिंग, रिएक्शन एट एनोड। एनोड जो देखो, ये एनोड है आपने, और ये सिल्वर की ब्लॉक बनी हुई है। जब तक एनोड पर है ये सिल्वर है, लेकिन जैसे ही ये इसको नीचे डिस्चार्ज करेगा, छोड़ेगा, तो सिल्वर आयंस हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ऊपर ये एनोड के पास Ag है, और जब वो सोल्यूशन में आएगा तो Ag+ में आ जाएगा। तो प्लस बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना है, बस ये आपका बन गया, ये कैटाइन बना लेगा। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कुछ नहीं, निल होगा रिजल्ट। और एक टाइम आएगा जो एनोड जो है साइज़ छोटा हो जाएगा, कि हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिमिनिश इन मास। तो एनोड भाई इसमें से कंज्यूम होता जाएगा, तो साइज़ छोटा जाएगा, तो एनोड डिमिनिश इन मास। यही सेंटेंस लिखना, कुछ और मत लिखना रिड्यूस वगैरह, क्योंकि क्लास 10th में और ISC बोर्ड में कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वर्ड यही रहता है कि एनोड जो है डिमिनिश इन मास, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन गो थ्रू इट। और रिजल्ट जो प्रोडक्ट, देखो इसमें प्रोडक्ट का क्वेश्चन बहुत आता है। प्रोडक्ट एट कैथोड क्या बना आपका, एंड प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। आप 10 ईयर्स में उठा के देखेंगे, कई बार आ चुका है, लेकिन बुक से याद करिएगा। 10 ईयर्स जो आते हैं मार्केट में उसमें थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं। प्रोडक्ट एट कैथोड में क्या बना, प्रोडक्ट्स है, इसमें तो क्या बना था आपका, सिल्वर मेटल बना था आपका ना, यही तो आपको पता है कि सिल्वर मेटल डिपॉजिटेड। और इसमें क्या हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया, इसमें कुछ चिपका नहीं, चिपका, इसमें से तो निकल रहा है, तो नील आया। लेकिन फिर भी तुम एक बात यहाँ लिखोगे, क्योंकि तुम्हें Ag+ आयंस फॉर्म्ड हुए, इस लाइन को इग्नोर मत करना। ज़्यादातर बुकों में सिर्फ नील लिखा होता है, लेकिन ये लाइन भी ज़रूर लिख लेना, क्योंकि उसने अपने में से तो सिल्वर आयंस दिए हैं ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन लर्न दीज थिंग्स। नाउ वी हैव कवर विद द इलेक्ट्रोप्लेटिंग पार्ट, एग्जाम्पल्स ऑल्सो इज़ बीन कवर एंड दिस थिंग। ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिएगा, हर दूसरे साल में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट। क्लास 10th में बहुत रिपीटिशन होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहाँ से लाएंगे, जो बुक में लिखा है उसी में से तो देंगे। इसलिए प्लीज़ डोंट इग्नोर थिंग्स, वट एवर इज़ बीन रिटन इन योर बुक, इफ़ यू लर्न फ्रॉम देम 100%। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि आंसर क्या लिखना है, क्योंकि आंसर्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। सो होपफुली यू आर क्लियर अप विद द
electroplating concept. We have discussed all the examples and the factors, also conditions and everything we have done.